Hello student, I hope you are doing well. Today we will start chapter 1 integer exercise 1.3 remaining question of this exercise. Question number 4. Starting from -1 multiplied by 5, write various products showing some pattern to show -1 multiplied by -1 equal to 1. तो यहां तक आपको ले जाना है -1 multiplied by -1 इक्वल टू 1 तक आपको दिखाना है यहाँ पर से स्टार्ट करते हुए. तो सी हियर -1 multiplied by 5 equal to you will get -5, and after that -1 multiplied by 4 you will get -4, -1 multiplied by 3 you will get -3. See here -1 multiplied by 2 you will get -2, -1 multiplied by 1 you will get -1, -1 multiplied by 0 you will get 0, -1 यहाँ तक आपको लिखना है. -1 multiplied by -1 you will get +1. The pattern shows that the product of negative integer and positive integer is always negative. You are seeing the same process in this one and this one, and you are this one also, and you are saying that minus product of -1 and 0 is 0 here, and here product of two negative integer is positive. This is the question number 4. Now we will do question number 5. I am removing, pause the video and note down the question. Solution of the question. Now question number 5. Find the product using suitable properties. आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है और सुटेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रोडक्ट इसका निकालना है. प्रोडक्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्ट इज 26 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई बाय -36. अब आप यहां पर देख रहे हैं यू कैन टेक -48 एज ए कॉमन. तो -48 आप कॉमन ले सकते हैं. नाउ इन ब्रैकेट -26 now 26 प्लस -36. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? यू आर सीइंग दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नाउ 48 आप यहां पर देख रहे हैं एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस. और ये 36 माइनस 26 ये हो जाएगा 10 और -10 आएगा क्योंकि 36 इज ग्रेटर integer, but negative sign, the absolute value of 36 is greater, so we will subtract from 36 minus 26 and we will put the sign of minus here. 36 is greater sign, so minus 48 multiplied by 10, that is plus 480. Now B part is 8 multiplied by 53 multiplied by -125. What suitable property you will use to find the product of this? You are saying that it will be suitable for multiplication of 8 and 125. We can get 1000 -1000. So we will multiply 53 8 multiplied by -125. This is commutative property. If we change the order of multiplication, then the result will be same. So this is commutative property. Commutative property, we will multiply this first and after that this.
53 multiplied by 8 multiplied by 1 minus 125, it will be minus 1000. Minus 1000 multiplied by 53 minus 53,000. Now pause the video and note down. Now question C part of fifth question. 15. C part of fifth question. 15 multiplied by minus 25 multiplied by minus 4 multiplied by minus 10. Here, what will be the suitable property to find the product of this question? You are seeing that it is easier to multiply 25 and minus 25 and minus 4. Minus 25 and minus 4. It will be 100. So, we will not multiply this 15 and 25 first. So, here is commutative property. Commutative property, if we can change the order of multiplication. This is commutative property. 15 multiplied by 25 minus 25 multiplied by minus 4 multiplied by minus 10. So this is also commutative property. Now 15 multiplied by minus plus and 15 100 multiplied by minus 10. So 15 multiplied by 100 multiplied by minus 10, that is minus 1000. Now minus 1000 multiplied by 15 minus 15,000. You will get minus 15,000. Now you will see D part of this question. D part is minus 41 multiplied by 102. What suitable property you will use? You can write 102 as a sum of 102. 102 you will get 102. So you will use distributive property here. Distributive property. Now multiply 41 multiplied by 100 minus plus 2 multiplied by minus 41. Now minus 4,100, 41 multiplied by 100 minus 41 to the 82 and minus sum will be, we will do the sum. Both are negative integer, we will do sum here. 4182 minus. This is the answer of the. Now question number 6, see question number 6. A certain freezing process requires the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? तो किसी फ्रीजिंग प्रोसेस में टेम्परेचर को कम करना है 40 डिग्री से प्रेजेंट टेम्परेचर क्या है? प्रेजेंट रूम टेम्परेचर 40 डिग्री है। तो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर और 40 डिग्री से आपको 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर कम हो रहा है और आपको 10 आवर बाद टेम्परेचर प्रोसेस स्टार्ट होने के बताना है। तो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर क्या होगा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 present room temperature equal to 40 degree Celsius. Decreasing temperature, कितना टेम्परेचर कम हो रहा है पर आवर में? Decreasing the room temperature every hour. Decreasing the temperature
द टेम्परेचर एवरी आवर इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। तो आफ्टर 10 आवर 5 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री में एक 1 आवर में कम हो रहा है। डिक्रीजिंग द रूम टेम्परेचर एवरी आवर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आवर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो आपका रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, रूम टेम्परेचर आफ्टर इक्वल टू आपका 40 डिग्री सेल्सियस पहले है, आपका कितना कम हो गया 5 डिग्री, -5 डिग्री कम हो रहा है तो 5 डिग्री माइनस कर देंगे, माइनस इंटू 10 डिग्री। 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 10 आवर में कितना कम हो जाएगा आप देखिए 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे तो आपका देखिए कितना आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। यू विल गेट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन, वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7. In class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempted. तो इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। व्हाट इज हिज स्कोर? तो उसका स्कोर बताना है। उसने 4 करेक्ट आंसर किए और 6 इनकरेक्ट आंसर किए, तो उसका स्कोर बताना है। दूसरा वाला पार्ट है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर? और फिर हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। सी अटेम्प्टेड, उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो कितने क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो उसमें उसका 0 मार्क्स मिलेगा। व्हाट इज हर स्कोर? तो आपको स्कोर बताना है। तो आपके एक पार्ट मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट पार्ट आई विल टेल यू, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट यू विल डू बाय योर ओन। फर्स्ट पार्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन गेट्स marks for 4 correct answer. Question number, this was question number 7. Mohan gets marks for 4 correct answer. 4 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स एक के लिए है, तो 4 क्वेश्चन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 मार्क्स आ जाएंगे। यू विल गेट 41. He gets marks for 6 incorrect answers. He gets marks for 6 incorrect आंसर। तो 6 इनकरेक्ट, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय -2 तो आपके -12 मार्क्स हो गए इनकरेक्ट आंसर। अब टोटल स्कोर ऑफ मोहन, टोटल यू विल सी टोटल स्कोर ऑफ मोहन। देखिए आपके 4 करेक्ट आंसर के 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 मार्क्स आ गए। अब आपके 6 इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए है, तो आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 2, मोहन विल गेट -12 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, 6 इनकरेक्ट आंसर एंड टोटल स्कोर ऑफ मोहन, टोटल स्कोर ऑफ मोहन। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 प्लस -12, तो एक प्लस है एक माइनस, अपोजिट साइन जो सब्ट्रैक्शन में, तो 20 - 12 दैट इज 8 मार्क्स। ये आपका आंसर हो गया। अदर पार्ट
two part you will do. And now see question number 8. A cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. तो ए पार्ट है फिर इसका. The company sells 3000 bags of white cement and 5000 bag of grey cement in a month. What is the profit or loss? पहले ये वाला पार्ट देख लीजिए. Profit of, ये क्वेश्चन नंबर 8. Profit of 1 bag of white cement. Profit of 1 bag of white and cement equal to rupees 8 rupees है. And loss of 1 bag of grey cement equal to rupees 5. आप देख रहे हैं ग्रे बैग में 5 रुपीज का लॉस है, रुपीज 5 का लॉस है, और व्हाइट सीमेंट में आपका रुपीज 8 का प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग उसने कितने सेल किए? 3000 बैग व्हाइट सीमेंट के. तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, प्रॉफिट on selling 3000 bags of white cement equal to 3000 multiply by 5 multiply by 8 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है. 8 3 जा 24,000. ये आपका इतने रुपीज प्रॉफिट हो गया. अब आपके ग्रे सीमेंट कितने बेचे? बैग 5000. तो लॉस ऑन सेलिंग, लॉस ऑन सेलिंग 5000 bags of grey cement equal to 5000 multiply by 5, क्योंकि आपका 5 रुपीज का लॉस हो रहा है इसमें. तो लॉस कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25,000 रुपीज. ये आपका हो जाएगा. तो आपका लॉस कितना हो रहा है? 25,000. प्रॉफिट कितना हो रहा है? 24,000. तो टोटल कुल मिला के लॉस ही हो रहा है. 25,000 के ज्यादा लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है. तो टोटल लॉस हो जाएगा, टोटल लॉस 25,000 माइनस 24,000, you will get rupees 1,000 का आपका लॉस हो जाएगा. अब बी पार्ट आप देखिए, इसको आई एम रिमूविंग दिस. See, B part is what is the number of white bag cement bags it must sell to have neither profit nor loss. न तो प्रॉफिट, कितने व्हाइट सीमेंट बेचने चाहिए, अवश्य बेचने चाहिए, न तो प्रॉफिट होने के लिए न लॉस होने के लिए. इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6,400. तो ग्रे बैग आपके 6,400 बैग सोल्ड किए, और प्रॉफिट और लॉस ना होने के लिए, बिल्कुल प्रॉफिट और लॉस, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उसके लिए कितने बैग आपके व्हाइट सीमेंट बेचने चाहिए. लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स सीमेंट, व्हाइट बैग्स बी, लेट, ये बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर था 8 का बी पार्ट. लेट द number of white cement be x. तो अब लॉस इक्वल टू प्रॉफिट, और लॉस क्या है? लॉस और प्रॉफिट इक्वल है. तो लॉस कितना होगा उसमें? लॉस किसमें होगा?
6,400 बैग में किसके हिसाब से, एक बैग में कितना लॉस होता है, 5 रुपीज का। तो प्रॉफिट सपोज करो x बैग है, तो प्रॉफिट कितना होगा, आपका प्रॉफिट कितना होगा, 8 रुपीज के हिसाब से होगा। x बैग है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना प्रॉफिट होगा x बैग। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि x कितना, उसको कितने वाइट बैग चाहिए। ये x जो है नंबर ऑफ वाइट बैग सीमेंट है, नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, वाइट सीमेंट बैग्स बी एक्स। तो आपका यू कैन डिवाइड 8 बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली ट्रांसपोज इन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस प्रोडक्ट 8 को यहां डायरेक्टली ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। तो आप 6 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 8 इक्वल टू x। तो इससे कैंसिल कर देंगे, 8 जा 64, 800 मल्टीप्लाई बाय 5। तो x इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका कितना आ गया, 4000 बैग्स। तो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इक्वल टू 8, आपका 4000 आंसर आ गया। Now see question number 9. Replace the blank with an integer to make it a true statement. तो आपका पहला पार्ट है, आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है। -3 इज हियर, -3 मल्टीप्लाई बाई, यहां पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, रिप्लेस ब्लैंक्स, इक्वल टू है 27। तो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 27 आ जाए, तो इससे 3 से डिवाइड कर दीजिए, 9 3 जा 27 माइनस 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यू विल गेट प्लस 27। बी पार्ट 5 मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पर रिप्लेस करना है, यहां पर 35 लाना है, यहां पर 35 माइनस का, तो यहां पर -7, 5 7 जा 35, यू विल गेट। सी पार्ट देखिए, -8 इज हियर, और यहां पर आपको फिलअप करना है, यहां पर है -56, 8 7 जा 56, माइनस प्लस माइनस। लास्ट डी पार्ट -12 इक्वल टू 132 पॉजिटिव है, तो यहां पर भी आपका निगेटिव का आएगा, निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट पॉजिटिव